Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, we started our chapter number 18, People Who Own Fame, right? Before we start our syllabus, let us see today's thought of the day and activity. So, today's thought of the day is, if you get tired, learn to rest, not quit. So, आपको जो काम के लिए ट्राई करते हो, टायर्ड हो जाते हो, उसके बाद जो रेस्ट करना है लेकिन क्विट नहीं करना है, उसे जो उस काम को छोड़ना नहीं है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हो लेकिन क्विट नहीं करना है। कोई भी चीज़ हो लाइफ में आपको एक और बार ट्राई करना होता है, राइट? आफ्टर दैट ओनली यू कैन सक्सीड। दैट्स वाई इफ वी विल गेट टायर्ड doing something, we can rest, not quit. Understood? Okay. And today's activity is, you have to draw अशोक चक्र। आपको ये पता है हमारा फ्लैग में होता है अशोक चक्र, राइट? 24 स्पोक्स होता है। आपको क्या करना है? अशोक चक्र ड्रॉ करना है। ओनली अशोक चक्र, ओके? So, this activity you have to do. Then in next class, we can discuss about Ashoka Chakra, what it is, how it has come to our flag, that all things we can discuss in our video class, because we have to discuss, we have to interact about this, okay? So, what you have to do? You have to just draw a Ashoka Chakra. Okay. Yesterday I said to you that you have to write about Emperor Ashoka, right? I have written something here. You can see and you can copy this also. Those who have not write, okay? So I have told you to write in extra notebook for your practice, right? अशोका was the third emperor of the Mauryan dynasty. Maurya dynasty में third emperor था अशोका. Grandson of its founder चंद्रगुप्ता. चंद्रगुप्ता मौर्य जो था वो मौर्य एम्पायर का फाउंडर था. एंड सन ऑफ द सेकेंड एम्परर बिंदुसारा, जो अशोका ने बिंदुसारा का सन. And he was the first ruler who tried to take forward his message to people through inscriptions. जो inscriptions के द्वारा, मतलब खुदी हुई शिलालेख के द्वारा जो लोग थे उनको उसका विचार जो था वो inscriptions के द्वारा वो मैसेज पास करता था. Message to people through inscriptions. He described his change in belief and thought after the Kalinga War. जो कलिंगा वार में उसको क्या हुआ, कैसे उसका मन में चेंजेस आया, क्यों वो नॉन वायलेंस को अडॉप्ट किया, क्यों वो वॉर करना नहीं चाहते थे, वो सब जो शिलालेख में लिख के पीपल को मैसेज देता था. एंड ही स्प्रेड द बुद्धिज़्म ऑल्सो, जो हमको दया से जो एनिमल्स और पीपल के साथ रहना है, काइंडनेस के द्वारा, ऑलवेज वी शुड बी ट्रूथफुल एंड ग्रेटफुल फॉर आवर लाइफ, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. धम्मा कहते हैं उसको, जो धर्म का प्राकृत वर्ड होता है धम्मा, ओके? जो इंस्क्रिप्शंस के द्वारा अशोका ने ये मैसेजेस स्प्रेड किया ऑल ओवर एशिया. जो सब कॉन्टिनेंट था इंडिया का, वहाँ भी एंड एशिया में भी वो प्रमोट करते, वो जो इंस्क्रिप्शंस के द्वारा प्रमोट करते जा रहा था. He promoted the spread of Buddhism across ancient Asia, and Ashoka worked for the welfare of the people and animals. जो आपको
लिखना already you have written, that is okay, but those who have not written, you can copy this. Okay. सो अशोका के बारे में आपको पता चला कि कैसे वो उन्होंने कलिंगा के वॉर के बाद उनका मन में चेंजेस हुआ और युद्ध छोड़ दिया, बुद्धा का फॉलोअर हुआ और बुद्धिज़्म स्प्रेड किया, राइट। जो इसका गुड डीड्स के लिए वो अभी भी हमारे मन में रहते हैं। अशोक, किंग अशोका, द एम्परर अशोका, राइट। So, in your book, Your Wisdom में है, have you read about the Ashoka Chakra? You know that in our flag there is Ashoka Chakra. Yes. You have ever think why it is, what it means, these all the things, have you ever think? If you have not think, just think about it. In online class we will discuss about the Ashoka Chakra, right? In next video, in online class होता है, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके, so you understood about Ashoka, Emperor Ashoka, right? Now we will discuss about another noble king. His name is Akbar, Mughal Emperor Akbar. The great Akbar also we used to call him, right? So the Mughal Emperor, इसके बारे में जानना है तो हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में भी हमको जानना होगा, राइट। सो जो मुगल एम्पायर का फाउंडर था बाबर, जो इसका अकबर का ग्रैंडफादर था। यस, आपको ये पता होगा बाबर 1526 CE में जो इंडिया में फाउंड किया मुगल एम्पायर को। एंड बाबर सन हुमायून, आफ्टर बाबर हुमायून सक्सीडेड हिज फादर, मतलब बाबर के बाद हुमायून था मुगल एम्परर। आफ्टर हुमायून्स डेथ, हुमायून का डेथ हुआ, उसके बाद अकबर आया इन 1556 CE. Akbar became the emperor in 1556 CE at the age of 13. जो उसका एज था 13, मतलब वो बहुत छोटा था when he became the emperor. ये जो अकबर था वो ग्रेटेस्ट मुगल रूलर कह जाता था, जो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन किया। उनका जो मुगल एम्पायर था उसको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन किया, विजडम से और रूल किया, इसलिए वो जो ग्रेटेस्ट मुगल रूलर कह जाता था। जो अकबर ने 13 ईयर ओल्ड था उस टाइम में जो गार्डियन was taking care of him because he was not able to maintain all his empire. So एक गार्डियन था उसको जो उसके साथ रहता था एंड उसको गाइड करता रहता था। एंड he won many battles, fought many battles and won many battles. जो इन्होंने मैनी बैटल को हासिल किया, युद्ध में विन हुआ। उसका जो गार्डियन था बैरम खान, एंड ही यूज्ड टू गाइड हिम, and he defeated the Afghan ruler Adil and his general Hemu at the second battle of Panipat. 1556 में जो पानीपत का वॉर हुआ, बैटल ऑफ पानीपत में
जो आदिल एंड हेमू को डिफीट करते ये एम्परर बन गया. And he fought Rajputs in North India also and made some of them members of his court. जो इन्होंने राजपूत्स को भी डिफीट किया नॉर्थ इंडिया में एंड he make them members of his court. He married some Rajput princes also. Rajputanis also he married. And he defeated rulers of Malwa, Gondwana, Ranthambore, Chittor, Gujarat, Bihar and Bengal also. He brought rebelling nobles under him. जो अच्छा चीज़ किया, अच्छा डीड्स किया, इसके लिए वो रिमेंबर he will be remembered in all of us. And in 1576 CE में defeated Rana Pratap Singh, the ruler of Mewar at the Battle of हल्दीघाटी. हल्दीघाटी जो बैटल हुआ उसमें राणा प्रताप सिंह को भी हराया. जो बैटल में many battles he won. And Akbar founded a new religious order called Din-e-Ilahi, which included best practices of all religions. जो इन्होंने फाउंड किया रिलीजियस ऑर्डर कॉल्ड दिन-ई-इलाही के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलीजियस के द्वारा जो इन्होंने फाउंड किया. एंड इन्होंने कैपिटल बिल्ड किया जो फतेहपुर सिकरी में नियर आगरा, आगरा के नियर होता है फतेहपुर सिकरी. जो उधर जो बनाया दीवानी आम, मतलब क्या होता है कॉमन पीपल के साथ जो कम्युनिकेट करता था, जो उसका प्रॉब्लम्स पूछता था, सॉल्व करता था, उसको क्या कहते थे दीवान ई खास, जो कॉमन पीपल के साथ कम्युनिकेट करता था. जो अकबर कुड नॉट रीड एंड राइट, उनको जो रीड करना और राइट करना नहीं आता था, लेकिन वो जो अच्छा म्यूजिशियन था. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. ही यूज टू लिसन एंड लर्न म्यूजिक ऑल्सो. एंड ही यूज टू लिसन लर्न पीपल, जो म्यूजिशियंस थे उनका काफ़ी जो ईमानदार किया, जो उसको लिसन करता था. ही हैड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स. जो ये मुस्लिम था फिर भी उनको जो सारे रिलीजन्स को जो रिस्पेक्ट करता था. ही वॉज अ काइंड एंड जस्ट अ ग्रेट रूलर. वो काइंड हार्टेड था. डिफरेंट रिलीजियस को जो रिस्पेक्ट देता था, मान्यता देता था. ओके. एंड अकबर डाइड इन 1605 में, जो CE कहते हैं, उस टाइम में उनका डेथ हुआ. एंड आफ्टर हिम हिज सन वॉज सक्सीडेड, जहांगीर. अकबर का सन जहांगीर सक्सीडेड द मुगल एम्पायर. ओके. सो इन हिज रेन, मतलब इनका जो रूलिंग टाइम था उसमें जो उन्होंने उनका सब्जेक्ट्स कहते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, उनका जो पीपल होते हैं, प्रजा लोग होते हैं, उनको उसके साथ जो अच्छा रिलेशनशिप था. एंड ही यूज टू ट्रीट देम वेरी काइंडली लाइक अ चिल्ड्रन. उनका जो पीपल थे, प्रजा लोग थे, उनके साथ अच्छे से ट्रीट करता था, जो लाइक ए चिल्ड्रन. उनका जो प्रजा लोग थे उनको चिल्ड्रन जैसे ट्रीट करता था. एंड उनका जो विजडम था, उनका जो अच्छा विजडम था, वाइस इंटेलिजेंस एंड जजमेंटल, गुड जजमेंटल स्किल था. उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में वो सब डाल के अच्छे से
राज किया। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो उनका प्रजा लोग के लिए अच्छा काम करता था। रोड्स, जो उनका कोई भी इच्छा हो उन पूरा करता था। ये सब करके जो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा मैनेज किया, इसलिए वो आज भी रिमेंबर होता है। उनका नाम जो आज भी लोग उनके बारे में बातें करते रहते हैं। ओके, सो ये था अबाउट मुगल एम्परर अकबर, राइट। एंड आपको ये पता होगा बीरबल, जो कहानी सुना होगा अकबर एंड बीरबल का। अच्छा कहानी जो बुद्धिमान बीरबल था, वो अकबर का काफ़ी सारा क्वेश्चंस या डाउट्स को सॉल्व करता था। आपको पता होगा अकबर एंड बीरबल का कहानी, राइट। और जो बीरबल था वो इसका मिनिस्टर, जो 9 जेम्स कहते थे, 9 रत्न। जेम्स मतलब रत्न, 9 मतलब 9 रत्न कहलाता था। उसमें से बीरबल एक था। एंड एक और था तानसेन, वो जो अच्छा म्यूजिशियन था, वो भी इसका मिनिस्टर ही था, जो अकबर का मिनिस्टर था। लेकिन जो इसमें डू यू नो में है, इसमें जो लास्ट में आप लोग देख सकते हो, डू यू नो बीरबल वॉज अ मिनिस्टर एंड वन ऑफ द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर का कोर्ट में जो 9 रत्न थे, जो 9 जेम्स थे, 9 रत्न, और जो 9 मिनिस्टर था उसको 9 रत्न कहलाता था। जो बीरबल वॉज अ मिनिस्टर, इसमें से बीरबल वॉज अ मिनिस्टर। आपको जो 9 रत्न के बारे में पता करना होगा, वो कौन कौन थे, क्या उसका जो इम्पोर्टेंस था उसका जो कोर्ट में, वो सब हम देखेंगे, राइट। अकबर का कोर्ट में जो 9 रत्न थे, मतलब 9 जेम्स थे, वो अब्दुल फाजिल, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान ई खाना, राजा बीरबल, उसका पहला नाम था महेश दास, फैज़ी, फ़कीर आज़िउद्दीन, तानसेन, राजा मानसिंह। ओके, जो उसके बारे में एक एक करके हम देखेंगे। जो राजा मानसिंह था वो ट्रस्टेड जनरल ऑफ मुगल एम्परर अकबर। ये जो राजा मानसिंह था वो जयपुर का राजपूताना था, जो बैटल में अच्छे से फाइट करता था एंड जो ट्रस्टेड बाय अकबर से, जो ट्रस्ट जो मैन था, इसलिए वो जो अकबर का 9 जेम्स में एक था। एंड तानसेन था हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन, born in a Hindu family, and he learned and perfected his art in the northwest region of modern Madhya Pradesh. And he most of the time he felt in the court of Hindu king of Rewa, Raja Ramachandra Singh and all, and then he came to Akbar's court, Mughal Emperor Akbar's court. Okay, मुगल कोर्ट में जो अकबर का 9th जेम में एक तानसेन भी था। एंड फ़कीर आज़िउद्दीन, ही वॉज रिलीजियस मिनिस्टर। रिलीजियस के बारे में अकबर को ज़्यादा इंफॉर्मेशन और ज़्यादा गाइडेंस देता था। उसका नाम था फ़कीर आज़िउद्दीन। एडवाइस देता था इसके बारे में, रिलीजियस के बारे में, रिलीजियस मैटर के बारे में जो गाइडेंस देता था। एंड शेख अबुल फैज़ इब्न मुकबर, जो उसका नाम फैज़ी नाम से जो पॉपुलर था, अकबर जो अब्दुल फाजिल का बड़ा भाई था, ब्रदर ऑफ अकबर्स
हिस्टोरियन, जो इसने भी जो 9 जेम्स में एक था, पोएट था, ये पोएम लिखता था। ओके। एंड बीरबल आपको पता है ये जो अकबर का 9 जेम्स में एक इम्पोर्टेंट जेम था, क्लोज था अकबर को, इम्पोर्टेंट कोर्टिनर पार्ट ऑफ अ ग्रुप कॉल्ड द नवरत्नास। नवरत्नास में 9 ज्वेल्स में एक था ये। एंड ही वॉज द एडवाइज़र एंड मेन कमांडर, मुख्य सेनापति था जो अकबर का कोर्ट में। इसका नाम था महेश दास। एंड नेक्स्ट अब्दुल रहीम, ये जो अकबर का नवरत्न में एक था, ये भी पोएट था अब्दुल रहीम। ये जो 9 रत्न, नवरत्न का पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं इसमें अकबर का 9 रत्न। ओके। एंड राजा तोदरमल, ही वॉज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। सो आपको ये पता चला कौन कौन थे अकबर का 9 जेम्स, राइट। सो आप लोग जो इसके बारे में ज़्यादा आपको जानना चाहते हो तो इंटरनेट में सर्च कर लो, मुग़ल एम्परर अकबर के बारे में पूरा हिस्ट्री मिल जाता है। ओके। सो अकबर वॉज 13 years old when he became the emperor, and guardian के द्वारा he was looked after. Then he won many battles and he was a very wise man and treated his subjects. subject का मतलब क्या होता है आपको पता है, जो people ruled by a king, वो subject कहलाता था। and he also known as Akbar the Great for his wisdom and able administration. अच्छा काम के लिए जो उसको सारे अकबर द ग्रेट कहते थे। ओके। सो आपको पता चला द मुग़ल एम्परर अकबर के बारे में। सो लेट अस सी द मीनिंग ऑफ हार्ड वर्ड्स 12 to 22, जो लास्ट क्लास में फर्स्ट टू 11 तक हम किए थे, जो आज के क्लास में मीनिंग ऑफ हार्ड वर्ड्स 12 to 22 देखेंगे। फर्स्ट वन, मटीरियलिस्टिक, हु इज़ फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, ओनरशिप एंड वेल्थ, जो संपत्ति के लिए, जो ओनरशिप के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए चाहते हैं, वो मटीरियलिस्टिक होते हैं। एंड नेक्स्ट वन, प्रीच्ड, डिलीवर a sermon or religious address to an assembled group of people, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उसको एड्रेस करते हुए कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, जो डिलीवर करते हैं उसको प्रीचर बोलते हैं और प्रीच्ड बोलते हैं। एंड 14th वन, हॉनेस्ट, ट्रुथफुल एंड सिंसियर, सिंसियर होते हैं उसको हॉनेस्ट कहते हैं। 15th वन, एस्टीम, रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, जो एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, मान्यता देते हैं, आदर देते हैं, उसको एस्टीम कहते हैं। 16th वन, रिफॉर्मर, अ पर्सन हु मेक्स चेंजेस टू समथिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट, जो सुधारने के लिए, सोशल सिस्टम को सुधारने के लिए कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, उसको रिफॉर्मर कहते हैं। नेक्स्ट वन, सती, द एक्ट और कस्टम ऑफ अ हिंदू विडो बर्निंग हरसेल्फ टू डेथ, जो पति का मृत्यु हो जाता है तो जो विडो होते हैं, उनका पत्नी होते हैं, वो बर्न हरसेल्फ, जो उसमें ही जो डेथ होता है उसका, जो बर्निंग हरसेल्फ टू डेथ, वो सती सिस्टम कहते हैं, द एक्ट और कस्टम। एंड 18th वन, वेदास, एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स, आपको पता होगा वेदास के बारे में, जो हमारा एंशिएंट इंडिया में जो लिखा हुआ स्क्रिप्चर था वो वेदास।
अभी भी वो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा हिंदू सिस्टम में. एंड 19th वन, विजार्ड, वन स्किल्ड इन मैजिक और क्लेवर पर्सन को विजार्ड कहते हैं. 20th वन, पेट्रियट, वन हु लव्स हिज कंट्री एंड फील्स लॉयल टूवर्ड्स इट. जो एक पर्सन होते हैं वो लॉयल होते हैं जो कंट्री के लिए, एंड पूरा मन के साथ वो कंट्री को लव करता है, उसको पेट्रियट कहते हैं. 21st वन, स्लोगन्स, इट इज़ अ शॉर्ट प्रेज दैट इज़ ईजी टू रिमेंबर. जो रिमेंबर करने में जो उस प्रेजेस होता है ईजीली रिमेंबर होता है, एंड एडवर्टाइजिंग में, रैली में यूज़ करते हैं स्लोगन्स को. एंड 22 वन, आइडल, एन इमेज और रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप. हम जो पूजा करने के लिए रखते हैं एक इमेज और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गॉड, गॉड कहते हुए जो पिक्चर रखते हैं या मूर्ति रखते हैं उसको आइडल कहते हैं. ओके, जो हमारा मीनिंग ऑफ हार्ड वर्ड्स हो गया. राइट, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो मीनिंग ऑफ हार्ड वर्ड्स, आपको इजी हो जाएगा लेसन को रीड करने में भी और अंडरस्टैंड करने में भी. ओके, सो आई विल वाइंड अप द क्लास बाय दिस. टेक केयर, बाय बाय.